Very good morning to all my very good morning students. So here we go with this. It is hereby products of state content. Such purposes only. We admit heavy of maybe under such use. Very good morning to all my dear students. Yeah, once again, very good morning to one and all. Here we go with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. Quite possible that we all look to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material, may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holder's rights and the videos will be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. Please be online, students. I am sharing the slides. Please wait. Yes, students. So, yesterday we have started with the basics of fundamentals of investment. Then we have described it. Then the characteristics of the same. Then we will discuss about savings versus investment. Then we will discuss about difference between savings and investment, traders, then speculators, gamblers, and investors. This is what we have discussed. And from today, means in this session, we are going to discuss about the investment avenues, investment options, investment alternatives, where one can invest. What are the options? Deposits, government savings schemes, bond and debentures, equity shares, mutual fund, insurance, retirement, money market, precious assets, financial derivatives, and new investment revenue. This is containing a entire module. So today we start with this.
But before we start, let me share one video with you where you will have practical implementation of such investment avenues. Please be online. I am sharing it. इसमें वो निवेश करने जा रहा है ये समझ लेना चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें रिस्क तो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन नहीं करते और उनमें सिर्फ सेविंग्स होती है, वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। किसी भी इन्वेस्टमेंट्स को दो बकेट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फाइनेंशियल एसेट्स एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल। हेलो मेरे दोस्तों, मोस्टली हर इन्वेस्टर यही चाहता है कि उसे उसकी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा का रिटर्न मिले और जल्द से जल्द मिले। ज्यादा से ज्यादा का रिटर्न तो चाहिए, प्लस एक और एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई रिटर्न तो ज्यादा और जल्दी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट खोने का रिस्क कम होना चाहिए। और यही रीजन है कि कई सारे लोग किसी स्कैम का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो हर दम कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम ढूंढते रहते हैं जिसमें कुछ महीनों या सालों में पैसे गारंटीड डबल हो जाए, कम रिस्क या बिना रिस्क के। लेकिन फ्रेंड्स, एक सच्ची बात
बात शेयर करूं तो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जिसमें रिस्क कम हो और रिटर्न बहुत ज्यादा हो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हकीकत में रिस्क और रिटर्न एक साथ चलते हैं। जितना ज्यादा रिटर्न उतना ज्यादा रिस्क, और जितना कम रिटर्न उतना कम रिस्क। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेश करने से पहले इन्वेस्टर को उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जांच लेनी चाहिए और कितना रिस्क है उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में जिसमें वो निवेश करने जा रहा है ये समझ लेना चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें रिस्क तो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स इन्फ्लेशन यानी महंगाई से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करते हैं। और कुछ इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क काफी कम होता है, लेकिन उनके रिटर्न्स महंगाई तक को बीट नहीं करते और उनमें सिर्फ सेविंग्स होती है, वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। किसी भी इन्वेस्टमेंट्स को दो बकेट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फाइनेंशियल एसेट्स एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड इनकम गिविंग प्रोडक्ट्स जैसे पीपीएफ या बैंक डिपॉजिट्स आते हैं। और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में जिनके हम इंडियंस दीवाने हैं, रियल एस्टेट और गोल्ड आते हैं। तो आइए समझते हैं टॉप 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, और इन्हें एक एक करके समझे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। नंबर 1, डायरेक्ट इक्विटी। स्टॉक्स खरीदना हर इन्वेस्टर के बस की बात नहीं होती, एज ये बहुत ही वॉलेटाइल मतलब उतार चढ़ाव से भरा एसेट क्लास होता है और इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं होता। सही रिसर्च करके सही स्टॉक खरीदना थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही, लेकिन कौन से समय पे सही स्टॉक खरीदना और कौन से समय पे उसे बेचना ये समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास ने लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं और कई सारे इन्वेस्टर्स ने इक्विटी में इन्वेस्ट करके अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट की है, लेकिन कई इन्वेस्टर्स ने काफी बड़ी रकम का लॉस भी किया है इक्विटीज में निवेश करके सही नॉलेज ना होने के कारण। अगर इक्विटीज में ट्रेडिंग करनी है तो सही स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और इक्विटीज का रिस्क कम करने के लिए हो सके तो एक ही सेक्टर की कंपनीज के स्टॉक्स ना खरीदकर अलग अलग सेक्टर की कंपनीज खरीदनी चाहिए। और डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। नंबर 2, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी स्टॉक्स में ही निवेश करते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशंस की बात करे तो हर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 65% इक्विटीज या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना ही होता है। इक्विटी फंड एक्टिवली मैनेज्ड या पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के रिटर्न्स की बात करें तो इन फंड्स के रिटर्न्स डिपेंड करते हैं फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी पर कि वो कितने रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी ओर इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ये पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं और ये अंडरलाइंग इंडेक्स जैसे निफ्टी या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मार्केट कैपिटलाइजेशन और जिन सेक्टर्स में ये निवेश करते हैं उनके बेसिस पर भी कैटेगराइज किया जा सकता है। उन्हें डोमेस्टिक यानी इंडियन कंपनीज में निवेश करने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इंटरनेशनल यानी आउट ऑफ इंडिया की कंपनीज में निवेश करने वाले फंड्स के बेसिस पर भी कैटेगराइज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टर कितना सक्सेसफुल बनेगा ये उसके प्रोडक्ट नॉलेज से ज्यादा डिपेंड करता है उसके बिहेवियर पर, जैसे पेशेंस और डिसिप्लिन पे और उसके फाइनेंशियल प्लान पे। अब सही बिहेवियर तो आपको खुद ही डेवलप करना होगा, लेकिन अगर आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, कार खरीदना वगैरह वगैरह अचीव कर सकते हैं और फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे आपको ये गोल्स अचीव करने के लिए और क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज यूज करनी चाहिए आपको, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। नंबर 3,
If you can't find a way to make money while you sleep, you will have to work till you die. This is 3. डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर्स के काम का होता है जिन्हें स्टेडी रिटर्न्स चाहिए। वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह वॉलेटाइल नहीं होते और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा सेफ कंसिडर किए जाते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स फिक्स्ड इंटरेस्ट जनरेटिंग सिक्योरिटीज जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि डेट म्यूचुअल फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की नहीं होते, लेकिन फिर भी इनमें रिस्क तो होता ही है। नंबर 4, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसे पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मैनेज करती है। मार्च से लेकर अप्रैल के बीच एनपीएस टायर 1 अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए मिनिमम अमाउंट कंट्रीब्यूशन को 6000 से रिड्यूस करके 1000 कर दिया गया है। एनपीएस इक्विटी, फिक्स्ड डिपॉजिट, कॉर्पोरेट बॉन्ड, लिक्विड फंड्स, गवर्नमेंट फंड्स वगैरह वगैरह इन प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है। आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा आपको एनपीएस के द्वारा इक्विटीज में निवेश करना है। लेकिन क्या आपको एनपीएस में सिर्फ टैक्स की सेविंग करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? इस पर एक वीडियो हमने अपलोड किया है जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में शेयर की है, उसे देखिएगा जरूर। नंबर 5, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। पीपीएफ एक लॉन्ग टेन्योर यानी 15 इयर्स का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। तो लॉन्ग टर्म में इस प्रोडक्ट में ह्यूज कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा देखने मिलता है, खास करके पीपीएफ मेच्योरिटी के आखिर के कुछ सालों में। पीपीएफ में मिलने वाला इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों पे सोवरेन गारंटी होने के कारण ये एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। पीपीएफ पे मिलने वाला इंटरेस्ट हर क्वार्टर रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। नंबर 6, फिक्स्ड डिपॉजिट। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में फिक्स्ड डिपॉजिट्स काफी सेफ ऑप्शन कंसिडर किए जाते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स के बीच। DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन रूल्स के अंडर हर डिपॉजिट का इंश्योरेंस 5 लाख तक का होता है, इंक्लूडिंग डिपॉजिट पे मिलने वाला इंटरेस्ट। डिपॉजिट्स में इन्वेस्टर की नीड के अनुसार मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट किया जा सकता है। फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट को इन्वेस्टर की अर्न्ड इनकम में ऐड करके उसे टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स किया जाता है। नंबर 7, SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये हर रिटायर्ड इंसान के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा होता ही है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सीनियर सिटीजन्स या कुछ केस में अर्ली रिटायरीज ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर Hey, if you're an entrepreneur, do this simple exercise with me. बस 30 सेकेंड में I will completely change the way you look at your business. Ready? Take a sheet of paper, उसमें 2 कॉलम बनाओ। फर्स्ट कॉलम में लिखो अर्जेंट और सेकंड कॉलम में लिखो इंपॉर्टेंट। अर्जेंट वाले कॉलम में ऐसे सारे टास्क लिखो जाकर किया जा सकता है।
पोर्टफोलियो का हिस्सा होता ही है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सीनियर सिटीजन या कुछ केस में अर्ली रिटायरीज ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का टेन्योर 5 सालों का होता है और मैच्योर होने पर इस स्कीम को और भी 3 सालों तक एक्सटेंड किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिनिमम 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए जा सकते हैं और एक से ज्यादा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खुलवाया जा सकता है, लेकिन सारे अकाउंट्स की टोटल क्यूमुलेटिव बैलेंस 15 लाख से ऊपर की नहीं हो सकती। इस स्कीम पे इंटरेस्ट क्वार्टरली पे किया जाता है और ये इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल होता है। इस स्कीम का इंटरेस्ट हर क्वार्टर रिव्यू किया जाता है, लेकिन एक बार इन्वेस्ट करने पर इन्वेस्ट किए गए अमाउंट का इंटरेस्ट रेट मैच्योरिटी तक सेम ही रहता है। सीनियर सिटीजन इस स्कीम में मिलने वाले इंटरेस्ट पर हर फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपीस तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एक रिटायर्ड इंसान कैसे अपने पैसे इन्वेस्ट करके रेगुलर मंथली इनकम क्रिएट कर सकता है, इस पर हम एक वीडियो फ्यूचर में जरूर बनाएंगे। लेकिन अगर आप भी यंग है और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा के ये समझना चाहते हैं कि कितने पैसे चाहिए होंगे आपको रिटायरमेंट के वक्त, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। नंबर 8, प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना। इस स्कीम में 60 इयर्स की एज से ऊपर के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस स्कीम में 7.4% का अश्योर्ड रिटर्न मिलता है। ये स्कीम एक पेंशन स्कीम है और इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली पेंशन लेने का ऑप्शन अवेलेबल है। इस स्कीम में पर मंथ मिनिमम 1000 रुपीस और मैक्सिमम 9250 रुपीस पेंशन मिलने का ऑप्शन है। इस स्कीम का टेन्योर 10 इयर्स है और PMVYY में मैक्सिमम 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। ये स्कीम 31 मार्च 2023 तक अवेलेबल है। मैच्योर होने पर इस स्कीम में निवेश किए गए पैसों को लौटा दिया जाता है और इन केस सीनियर सिटीजन की डेथ होने पर पैसे नॉमिनी को लौटाए जाते हैं। PMVYY इस स्कीम पर हम एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे फ्यूचर में। नंबर 9, रियल एस्टेट। जिस घर में आप रहते हैं उसे आप एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं कर सकते और सेकंड प्रॉपर्टी जिसमें आप फ्यूचर में रहने की नहीं सोच रहे, उस प्रॉपर्टी को एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जा सकता है। प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू और रेंटल डिसाइड करने में लोकेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। रियल एस्टेट में रिटर्न्स 2 तरीकों से मिलता है, कैपिटल अप्रिसिएशन एंड रेंटल। लेकिन बाकी एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इलिक्विड एसेट होती है। हमने हमारी इस यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर रियल एस्टेट को लेकर कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। नंबर 10, गोल्ड। गोल्ड को ज्वेलरी फॉर्म में खरीदने के कुछ नुकसान की बात करूं तो सेफ्टी और हाई मेकिंग चार्जेस जो ऑलमोस्ट 10 to 25% तक होते हैं। गोल्ड कॉइन्स खरीदना Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, ज्वेलरी के कंपैरिजन में बेटर ऑप्शन होता है। कई सारी बैंक्स आजकल प्योर गोल्ड कॉइन्स सेल करती है, लेकिन गोल्ड खरीदने के ऑल्टरनेट ऑप्शन की बात करें तो पेपर गोल्ड खरीदना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में। गोल्ड ETF की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में होती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पेपर गोल्ड खरीदने का। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर हमने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अब क्या करना चाहिए आपको? ऑप्शंस जो हमने अभी डिस्कस किए उनमें से कुछ मार्केट लिंक्ड है तो कुछ फिक्स्ड इनकम और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में इन दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो लाइक कीजिए। Am I audible now, students? Can you hear me? Yeah, thank you. So, how's that video? So, students, how's that video? Because almost that person has tried to cover
many investment alternatives. Yeah, it's really good for information purpose. Now, as far as our syllabus is concerned, because we are bound with our syllabus, no doubt the practical world is far, far better and bigger, but we have to be in certain area only. So we'll start with our syllabus, means the topic of our syllabus. बट यस, ये सभी जो है मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यहाँ पे बुक्स में आपके पास जो होगा उसमें कुछ टर्म्स जो है बेसिक डेफिनेशंस विल बी गुड वन, बट वहाँ पे जो लाइक वी कैन से कंडीशंस, दैट कंडीशंस में डिफर, बिकॉज सिलेबस जो है वो ड्राफ्ट पुराना होता है, बुक्स जो है वो उसकी लेटेस्ट एडिशंस में अलग कंसेप्ट होते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं। जैसे कि जनधन बीमा योजना जो अभी लेटेस्ट है, मतलब लेटेस्ट है वो भी 2-3 साल पुराना है, 4 साल पुराना हो गया, तो उसमें 12 रुपए में आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो ये सब चीजें जो है, अब उसके प्रीमियम में कुछ चेंज आया एंड मेनी मोर थिंग्स। तो ये सब उसमें माइनर चेंजेस रहेंगे जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। माइनर चेंजेस विल बी देयर, बट कंसेप्ट जो है वो सेम रहेगा उसका। कि भाई ईटीएफ है, इक्विटी ट्रेडेड फंड है, गोल्ड सोवरिन बॉन्ड्स है, फिक्स डिपॉजिट है, उसका कंसेप्ट सेम रहेगा, बट इंटरेस्ट रेट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस में वरी लिटिल बिट, वो वहां पे लिटिल बिट चेंजेस हो सकते हैं। इज इट क्लियर क्लास? Okay, thank you Amruta and Srina for confirmation. So my intention is that मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि it's good to go with books and few other things as far as your exams are concerned. But as far as the practical world is concerned, it's better to have some sort of ideas from the videos, some other materials, and some practical aspects that we need to adopt in our life. So here we go with the basics of our investment alternatives. These are the invest, आप इसको इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज भी बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स भी बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट के टाइप्स भी बोल सकते हो। तो एग्जाम में मेक श्योर कि आप मुझे ऐसा मत बोलना कि सर आपने तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पढ़ाया था, तो इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स का क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस का। तो प्लीज मेक श्योर, please make sure कि investment avenues, types of investments, investment alternatives all are same, सभी का आंसर सेम ही आएगा। So now we go with the first one, that is deposits, basic deposits जो हम लोग बैंक में करते हैं, फिक्स डिपॉजिट आप जिसको बोल सकते हो। आज मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी आ गई 31st को, मैं काफी खुश था। हर मंथ में मैं खुश हो जाता हूँ क्योंकि मेरी सैलरी आ जाती है, और फिर 2-3 तारीख को मैं नाराज हो जाता हूँ क्योंकि सैलरी चली जाती है। जोक्स अपार्ट, बट यस, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी सैलरी आई तो मैं काफी खुश था, और मैंने देखा कि भाई इसमें से 5000 रुपीज जो है वो मैं इजीली सेव कर सकता हूँ। तो मैं उस 5000 रुपीज का क्या करूँ, जैसे कि अ, अभी मैं प्लान कर रहा हूँ मेरे हॉलीडेज के लिए, मुझे 7-8 में जन्माष्टमी के टाइम पे घूमने जाना है। लेट्स से कि मेरे को महाराष्ट्र में घूमने जाना है, या तो राजस्थान में जाना है, या तो कहीं पे सराउंडिंग्स बॉर्डर स्टेट में मुझे घूमने जाना है। तो मेरे पास वो 5000 रुपये जो है वो 2-3 महीने तक तो ऐसे ही पड़े रहने वाले हैं, जुलाई अगस्त तक, लेट से कि अगस्त तक 3-3.5 महीने मेरे पास वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको सेविंग अकाउंट में रखूंगा तो मुझे सिर्फ 4% इंटरेस्ट मिलेगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं उसको फिक्स डिपॉजिट में रखूंगा, मैं उसकी फिक्स डिपॉजिट करवा दूंगा, तो मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा वहां पे? एनी आइडिया क्लास? आपको कुछ आइडिया है वहां पे इंटरेस्ट रेट क्या है, फिक्स डिपॉजिट क्या इंटरेस्ट रेट?
Yeah, okay, good. 8%, 6 to 7% accepted. अगर मैं इन्वेस्ट फर्जन बेटा, या ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं सीनियर सिटीजन, मैं हूं नहीं, बता देता हूँ, मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसिडरिंग कि अगर मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो मैं फिक्स डिपॉजिट करता हूँ, तो मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि आई एम हैविंग ग्रे हेयर्स नाउ, सो मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी, मेरी अर्निंग कैपेसिटी थोड़ी कम है, तो क्या अगर मैं फिक्स डिपॉजिट करूंगा तो उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है क्या? अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे तो आप तो यंगस्टर है, तो आपको कम मिलेगा तो चलेगा। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी अर्निंग कैपेसिटी अब काफी कम हो गई है, एंड मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, मेरा जो लाइफ स्टाइल है, वो मे भी इंटरेस्ट के अर्निंग ही चलेगा। तो क्या मुझे, अगर मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मैं फिक्स डिपॉजिट करवाऊंगा तो क्या मुझे वहां पे एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट होगा वहां पे स्टूडेंट्स? Yes, students, I'm asking to you. Yes, okay. Mira has replied. Yes, good. कितना कितना एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे? सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, दैट डिपेंड्स ऑन बैंक, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो 0.25 से लेकर 0.50% रहता है। 0.25 0.50% का एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है सीनियर सिटीजन को मिलता है। 0.25 not 250, it's 0.25। जैसे कि यहाँ पे मीरो ने बताया कि 6 to 7%। फॉर एग्जाम्पल अगर मीरो जाता है, वो 7% ब्याज पे अपनी फिक्स डिपॉजिट करवाता है, मैं एज ए सीनियर सिटीजन जाऊंगा तो मेरे को 7.5% का इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलेगा। गुड, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम्स, आप लोगों ने नाम सुना है पोस्ट ऑफिस का? पोस्ट ऑफिस, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, ये काफी पुराना सॉन्ग है, एकदम बढ़िया था। एंड वी पीपल हैव लॉट्स ऑफ मेमोरीज फ्रॉम दैट। हमारा घर तो मतलब जब मैं छोटा था तो मेरे घर तो डाकिया आता था, वी गाइस वर वेटिंग, क्या आया होगा क्या आया होगा। अभी ये तो अभी ये मेल्स उन सब की वजह से उन लोगों का तो पूरा वाट लग गया है, उसका बिजनेस बंद हो गया है। हमारे टाइम पे वो आता था, एंड इट 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 ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अस, वो एक अलग ही जमाना था। तो ये पोस्ट ऑफिस जो है, वहां पे भी आप अपना बैंक अकाउंट के जैसे ही आप वहां पे अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। गवर्नमेंट की अलग अलग कई सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की। अभी रिसेंटली उसमें एक है वो सुकन्या योजना, जिसमें पोस्ट ऑफिस में आप अकाउंट खुलवाओगे, फिर उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाओगे, तो जब गर्ल जो है वो 18 ईयर्स की होगी तो उसकी पढ़ाई के लिए, उसके मैरिज के लिए, उसमें काफी बड़ी अमाउंट मतलब 4-5 लाख रुपए के आसपास है, ज्यादा मालूम नहीं है डिटेल कितना है वो मिलेगा। तो गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स जो है, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, या अगर आपने नाम सुना हो केवीपी, किसान विकास पत्र, काफी फेमस था एक टाइम पे, काफी फेमस। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपको पहले तो मुझे मालूम है, मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि आपको 4.5 साल में पैसे डबल करके देता है। अगर आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाया है किसान विकास पत्र में, तो 4.5 से 5 साल में वो आपका पैसा डबल हो जाएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सेम, एंड उसमें बेनिफिट क्या था कि 100% सेफ, क्योंकि आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, तो 100% सेफ था। कोई फ्रॉड के चांस नहीं, कोई चीटिंग के चांस नहीं, 100% सेफ एंड सिक्योर। फिर उसके ऊपर अगर आपको लोन चाहिए तो लोन भी मिल जाता था। आपके पास 1 लाख रुपए का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, तो उसके ऊपर आप किसी भी बैंक में जाओगे तो आपको 80-90% का लोन भी मिल जाएगा। तो
टाइम बीइंग अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप लोन ले लीजिए, लोन को रीपे कर दीजिए, आपका एनएससी जो 4.5-5 साल बाद है वो डबल तो हो ही जाएगा। तो ये भी बेनिफिट्स है। गवर्नमेंट की कई सारी अलग अलग स्कीम्स है, मेजोरिटी स्कीम्स जो है वो ऑफिस के थ्रू हैंडल होती थी, बट अब गवर्नमेंट ने वहां पे डाइवर्सिफाइड कर दिया, प्राइवेट बैंक भी उसको हैंडल कर रही है। एंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होते हैं, या आपका जो इनकम टैक्स का स्लैब होता है उसमें गवर्नमेंट जो पहले जो है वो अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया होता है तो वहां पे एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज का आपको इनकम टैक्स में से रिबेट मिलता था, टैक्स में से आपको वो छूट मिलता है 20,000 रुपीज का। जैसे कि अभी हम बोलेंगे अगर 1,50,000 तक का उसमें इन्वेस्टमेंट में को एग्जम्पशन है, तो फिर उसमें हॉस्पिटल ये मेडिक्लेम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट ये सब हमें अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपने कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से वहां पे इन्वेस्ट किया है तो अच्छी बात है, कंपनीज है कोई उसके डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है तो वो भी अच्छी बात है। डिबेंचर क्या है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है डिबेंचर क्या है? व्हाट इज डिबेंचर? टेल मी। अच्छा डिबेंचर क्या है? एनी आइडिया अबाउट डिबेंचर्स? डिबेंचर्स कौन बाहर निकलता है, किस हिसाब से वर्क होता है? मैं अभी आपको सभी ये जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है ऑल्टरनेटिव है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। लेटर वन बाय वन उसको हम समझेंगे। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके सब्जेक्ट का बेस बेस। एनी आइडिया स्टूडेंट्स? ओके, गुड श्रेना। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में बताता हूँ। डिबेंचर्स जो है वो कोई भी कंपनी निकाल सकती है, जैसे कि आईपीओ रहता है, इक्विटी शेयर्स रहता है, वैसे ही डिबेंचर्स भी रहते हैं। अब जैसे कि मैं एक कंपनी का मालिक हूँ और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आईपीओ लाऊंगा, इक्विटी शेयर लाऊंगा, तो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। मुझे एजीएम में एनुअल जनरल मीटिंग में उन लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा एंड ब्ला 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 ब्ला, काफी सारी लेंथी प्रोसेस में मुझे पास होना पड़ेगा, पर मेरे को पैसे चाहिए। तो अगर मैं आईपीओ के थ्रू जाऊंगा तो मुझे सस्ते में पैसे मिल जाएंगे। सस्ते में पैसे मिल जाएंगे जैसे कि अगर मैं आईपीओ के थ्रू जाता हूँ और लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे अगर मेरी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ही मुझे डिविडेंड देना है, और वो भी डिपेंड्स ऑन माय सिचुएशन। अगर मुझे डिविडेंड देना है तो मैं दूंगा, नहीं देना है तो देयर इज नो कंपल्सन टू पे द डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये आप लोगों को मालूम है स्टूडेंट्स? ठीक है। तो अब जब मार्केट, एंटायर मार्केट जो है वो आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन काफी स्टेबल है, मार्केट में इनफ लिक्विडिटी भी है, एंड कंपनी को पैसे चाहिए कम इंटरेस्ट पे या तो विदाउट इंटरेस्ट, तो उसको आईपीओ के थ्रू जाना चाहिए। आईपीओ के थ्रू जब जाती है तो कंपनी की इमेज भी अच्छी होनी चाहिए, मार्केट इमेज, रेपुटेशन, तभी लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो आईपीओ जो है वो एक तरीका है मार्केट में से पैसा इकट्ठा करने का। अब दूसरा तरीका है डिबेंचर। अब कंपनी
कंपनी को मालिकी हक जो है, ओनरशिप के राइट्स जो है वो शेयर नहीं करते। कंपनी इज रेडी टू पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स and after certain time period 3 years 5 years 8 years 10 years it depends after certain time period जो भी अमाउंट है वो कंपनी वापस दे देगी डिबेंचर होल्डर्स को। तो वहां पे उसके रिलेशनशिप जो है, ट्रांजेक्शन्स जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, ट्रांजेक्शन्स क्लियर हो जाएंगे, दैट्स इट, सेट ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद कौन तुम कौन मैं। तो जब कंपनी को मार्केट में से पैसे चाहिए तो वो डिबेंचर भी निकाल सकती है, और डिबेंचर में लोग पैसा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि एक तो वहां पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा अच्छा होगा, इंटरेस्ट रेट अप्रोक्स 11% के आसपास होगा ऑन एन एवरेज। मैं आज की बात कर रहा हूँ, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 11% के आसपास होगा। आज सेविंग में आप पैसा रखोगे 4% मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट करोगे तो आपको शायद 7-8% मिलेगा। बट अगर आप डिबेंचर परचेस करते हो तो वहां पे आपको 10 से 11% का फिक्स रिटर्न मिल सकता है। अब लोग डिबेंचर क्यों परचेस करते हैं, इसका भी मैं रीजन आपको बता दूं। क्योंकि वो सेफ है, वो 100% सेफ है। अगर कल को कंपनी उठ जाती है मतलब वाइंड अप हो जाती है, कंपनी अपना बिजनेस जो लिक्विडेशन में डाल देती है, तो भी सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पैसे दिए जाएंगे, वापस किए जाएंगे। सो दैट्स व्हाई वो एकदम सेफ है। बट रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10 से 11% का आपको मिल जाएगा। So this is what we can say debenture, basics about the debenture. As are you there? Can you hear me? Okay, thank you. Then the next one is equity share. इक्विटी शेयर में आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब इक्विटी शेयर्स में भी काफी अलग अलग रहता है, जैसे कि आईपीओ के थ्रू जाना, एफपीओ के थ्रू जाना, फर्स्ट पब्लिक ऑफर है, इनिशियल पब्लिक ऑफर है, एंड काफी सारे उसमें अलग अलग पॉइंट्स जो है वो आते हैं। बट हमारे सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है। अदरवाइज इक्विटी शेयर मार्केट के लिए पूरे 10 लेक्चर्स जो है वो भी कम पड़ेंगे। तो थोड़ा ब्रीफ जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इक्विटी शेयर मार्केट्स में ये अपना पैसा लगा सकते हो। हमारे पास 2 एक्सचेंज है, एनएससी बीएससी, टोटल 29 प्लस एक्सचेंजेस है। बट मेन 2 एक्सचेंज में काम होता है, मेन जो है वो सेबी है जो इसको गवर्न करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एनसीडेक्स, एमसीएक्स जैसे भी एक्सचेंजेस है। शेयर मार्केट में आप किसी भी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है उसके शेयर्स आप बाय एंड सेल कर सकते हो। अब शेयर मार्केट में निफ्टी है, सेंसेक्स है। निफ्टी जो है वो 50 स्टॉक्स का बना हुआ इंडेक्स है। सेंसेक्स जो है वो 30 स्टॉक्स, बीएसई 30 जो है इट इज इक्वल टू सेंसेक्स, उसका बना हुआ इंडेक्स है। तो हम बाद में जब हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ मॉड्यूल हमारा है तो उसमें हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट तो राइट नाउ यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। इक्विटी शेयर्स में भी आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां पे रिस्क आपको ज्यादा भी मिल सकता है, सेम टाइम रिटर्न भी आपको ज्यादा, सॉरी रिस्क भी ज्यादा है एंड रिटर्न भी ज्यादा है, डिपेंड्स मार्केट सिचुएशंस कैसी। इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट मतलब ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसमें से पैसे जो है वो स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट होते हैं। बट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ग्रोथ फंड है, बैलेंस्ड है, एज एंड समथिंग लाइक दैट। मैं आपको बाद में बताऊंगा पूरा। तो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में भी आप अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स है, कई सारे पेंशन प्लान है, उसमें भी आप जैसे कि वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, ग्रेचुइटी है, प्रोविडेंट फंड है, उसमें भी रिटायरमेंट की प्रोडक्ट्स है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स है, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, उसमें भी आप अपना पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड प्रेशियस एसेट्स मार्केट है, लैंड है, वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है, वहाँ पे भी न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। अब न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जो है उसमें अदर्स सभी जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। आपने नाम सुना है एम एफ हुसैन का? एम एफ हुसैन का नाम सुना है आप लोगों ने? ही इज अ ग्रेट पेंटर, काफी बड़ा पेंटर है वो। आप उसके बारे में सर्च करना, उसकी पेंटिंग जो है वो करोड़ों रुपए में बिकती है।
And आप बिलीव नहीं करोगे, but many industrialists, many businessmen are investing in his painting. आज 10 करोड़ में लेंगे, वो पेंटिंग जैसे जैसे पुरानी होती जाएंगी उसके प्राइसेस जो है बढ़ते जाएंगे। न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में आप ऐसी कुछ चीजें, एंटीक चीजें जो है उसको भी कंसीडर कर सकते हो। देन बिटकॉइन का नाम सुना है आप लोगों ने? 100% सुना ही होगा बिटकॉइंस। क्रिप्टो करेंसी शायद सुना होगा आप लोगों ने। क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ बिटकॉइन एक नहीं है, बिटकॉइन के अलावा भी कई सारी और करेंसी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिटेल में वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। आई थिंक वी आर लेट। ओके, सो that's it for the day. Thank you so much, class. Enjoy your weekend. Stay happy. Thank you.